Hello. Dr. Shrikant, are you able to hear me? Dr. Snail, are you able to hear me? Yes, Anand, I can hear you. Okay, thank you, Dr. Snail. Dr. Shrikant, are you able to hear me? We just want to see if we can hear your voice. Dr. Shrikant? Dr. Shrikant, can you hear me? Hello? Dr. Shrikant, can you please say something? Anand, there is some issue with Dr. Shrikant's login. He's trying to re-login from other device. Okay, okay. Okay, thank you, Dr. Snail. Hi, everybody. Welcome to today's Gyanvardhini session number 10. So we'll just wait for a minute or two for Dr. Shrikant to join us.
Hello. Yeah, hi, Dr. Shrikant. Yeah. Hi. Good evening. Good evening, Good sir. evening. Yeah. Are you able to hear me, sir? Yeah. Of course. Okay. Okay, so would you be okay if we can start now, Dr. Yeah. Shrikant? Sure. Sure. Yes. Yes. Please. Sure. Okay, thank you, Dr. Shrikant. So good evening, everyone, and welcome to Gyanvardhini session number 10. I'm Anand from ClinSav team, and I thank each one of you to join us today as we embark on yet another enlightening journey of wisdom and knowledge enhancement. Before we begin, I would like to share a brief overview of the ClinSav app that we have developed over the last 5+ years. ClinSav means Clinic Savvy, and it is the only mobile-based clinic management app in India that allows you to manage your clinical practice in a full or 100% offline mode. It has a very simple design. ClinSav helps doctors to easily manage patients, appointments, case papers, full prescriptions, bills, fees, issue of pre-filled letters, manage finances, and doing follow-ups with patients for any outstanding dues. ClinSav also sends automated appointment reminders 1 day in advance to your patients through SMS, and also gives you the ability to simply swipe and send custom WhatsApp messages to your patients. Now we shall start with our today's webinar. Our today's webinar topic is Shatkriya Kal and its clinical application. Our distinguished speaker for today is Dr. Shrikant Sanmukh. A brief about Dr. Shrikant. Shrikant Sanmukh is an MD Ayurvedacharya, Ayurveda Vachaspati, having 9+ years of clinical experience along with an equivalent teaching experience. Dr. Shrikant is working as a chief consultant at Samhita Ayurveda and as an associate consultant at Ayu Healthcare Health Center at Mumbai. Dr. Shrikant also teaches students at Mandsaur, MP as an associate professor. Let me just start my camera as well. Sorry. Dr. Shrikant has participated and volunteered at 20+ institutes for various paper presentations, treatment camps, workshops, and webinars. Till date, Dr. Shrikant has conducted activities and lectures in Balak Palak Shivir, or Children Parents Camp, organized by Bharatiya Gurukul Parivar, published a free e-book on Tantra Yukti application in children education, and worked as a doctor in various health checkup camps organized by Sandu. Dr. Shrikant, we are honored to have you with us today to conduct this webinar. Let us all welcome Dr. Shrikant Sanmukh for today's session. Dear sir, you can start with your session now. Yeah. Sure. Can I share my slides? Yes, sir. Sure. So we are able to see your presentation now. Wait a minute. Some mistakes is going on. Okay. There are two presentation already open up. Yeah. So first of all, good evening to all, and I convey my thanks to ClinSav team for giving me this opportunity to present the one of the vast topic in a short period of time.
So let me start with the Guru Vandana. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसुतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। सबसे शुरुआत में उन गुरुओं के प्रति मैं वंदन करना चाहूंगा जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जिनके लेखन व्याख्यान से मैंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, और ये आगे का जो भी प्रेजेंटेशन मैं करने वाला हूँ वो सब उनके चरणों में समर्पित है। तो आज का टॉपिक है षटक्रिया काल। देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है और 1 घंटे का समय इसके लिए बहुत कम पड़ने वाला है, बट आई विल ट्राई टू मैनेज इट ऑल इन 1 आवर सो दैट आप लोगों को एटलीस्ट एक आइडिया आ जाए कि ये षटक्रिया काल क्लिनिकली केसेस में हम जाने अनजाने में कैसे देख लेते हैं, और अगर हम इसको जान समझ बूझ के साथ इस्तेमाल करें तो चिकित्सा में हम साध्य व्याधियों को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। वैद्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पुराने वैद्यों की मेथोडोलॉजी यही रही है कि आयुर्वेद का कोई भी विषय अगर समझना हो तो उसके शब्दों की उत्पत्ति से जाने। तो क्रियाकाल, अगर इस वर्ड की निरुक्ति और व्युत्पत्ति हम समझे तो रेफरेंस जैसे स्लाइड में है वैसे मिलते हैं, जिसका अगर सर्वसाधारण अर्थ लिया जाए तो अर्थ होता है किसी भी कार्य का डायरेक्शन या किसी कार्य की दिशा तय करना। और अगर आयुर्वेद कंटेक्स्ट में इसको समझा जाए तो क्रियाकाल का एक्चुअल में मीनिंग हो जाता है चिकित्सा काल। इसका वर्णन मिलता है सुश्रुत संहिता अध्याय 21 वर्ण प्रश्न अध्याय में। अब अध्याय का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है कि अरे ये तो वर्ण के बारे में, वुंड के बारे में है। सो षटक्रिया काल का पूरा रेफरेंस जो आता है, अधिकरण जो है पूरा वुंड के संदर्भ में है, तो एक जनरल प्रैक्टिशनर के लिए इसका यूज क्या है, ये तो शल्य सर्जरी का विषय हो जाता है। तो वैसे नहीं है। डलन आचार्य वहां पे कहते हैं कि यहाँ पर ये वर्ण प्रश्न नाम जो है अध्याय का, इसमें वर्ण शब्द से वात आदि दोषों को लेना है, क्योंकि वही है जो निज वर्ण के लिए कारण होते हैं, और इसलिए इस अध्याय में कही गई सारी बातें ये वात आदि के विषयों में आ जाती है। तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमारा हमेशा इंटेंशन ये रहता है क्यों पढ़ना है, जरूरत क्या है, क्या इसकी सच में कोई नीड है, या अभी चल रहा है वैसे भी हम चिकित्सा करके सिद्ध तो हो रहे, पैसे तो कमा रहे, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। आधुनिक समय में अभी जब हम मॉडर्न मेडिसिन का हर जगह पे बोलबाला देखते हैं, उनकी एक मेथोडोलॉजी है जिसमें वो डिसीज की पैथोलॉजी पूरी एक्सप्लेन तो कर देते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड भी बता देते हैं, बट दे ओनली कैन प्रोसीड व्हेन दे नो दैट द डिसीज हैज बीन एक्सप्रेस कंप्लीटली। डिसीज के सिम्टम्स आइदर रिपोर्ट्स में या फिजिकली देखने के बाद ही वो चिकित्सा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट्स में आपके कुछ नहीं है, पेशेंट कह रहा है मुझे कंप्लेंट्स है, बट आपके इसमें कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, दे कांट ट्रीट यू। ये इंक्यूबेशन पीरियड के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है, और यही हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर हम इस क्रियाकाल को ठीक से ढंग से समझ ले तो ये इंक्यूबेशन पीरियड में हम ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं और रुग्ण को डिसीज की ओर जाने से रोक सकते हैं, और यही हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर इसको आप समझे तो फिर लोग कहेंगे फिर भी इतना दिमाग क्यों लगाना, मॉडर्न मेडिसिन जैसे कर रहा है वैसे हम अगर चिकित्सा करें, पेशेंट आएगा, लक्षण देखेंगे, ट्रीटमेंट दे देंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा, कहा अवस्था क्यों समझनी है, क्या जरूरत है इन 6 अवस्थाओं को समझने की। तो सुश्रुत आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप साध्य व्याधि की ट्रीटमेंट कर रहे हो और उसमें आपने अवस्था आने से पहले ही उस अवस्था की चिकित्सा शुरू कर दी, या अवस्था प्राप्त होने के बाद समझने के बाद भी आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ भी चिकित्सा नहीं की, या क्रिया जो आपने की अवस्था के अनुरूप वो बहुत माइल्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जबकि सिम्टम्स बहुत इंटेंस थे, या माइल्ड सिम्टम्स में आपने इंटेंस ट्रीटमेंट प्रोवाइड की या रॉन्ग ट्रीटमेंट प्रोवाइड की, इन पांचों कंडीशंस में आप सिंपलेस्ट इजीली ट्रीटेबल कंडीशन को भी
बाउंस कर देते हो, उसको ट्रीट नहीं कर पाते हो, पेशेंट आपके हाथ से छूट जाता है या पेशेंट कष्टसाध्य कंडीशन में ड्रॉप डाउन हो जाता है। तो इसलिए हमें षटक्रिया काल को ठीक से जानना समझना जरूरी है। तो क्या इतना जानना पर्याप्त होगा? नहीं। हर व्याधि के जब हम निज दोषों की बारे में सोचते हैं, मतलब कौन सा दोष बड़ा है, ये जब समझते हैं और उसकी अवस्था को देखने जाते हैं, तब एट द सेम टाइम हम जिसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं यानी रुग्ण पेशेंट की, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ, उसका बल, डिसीज की स्ट्रेंथ, डिसीज की इंटेंसिटी, इन दोनों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल जो है उस बेसिस पे डिजाइन होता है। हमारी चिकित्सा 3 कंपोनेंट से बनी हुई है। एक है औषधि, दूसरा है आहार, तीसरा है विहार। और इन तीनों को प्लान करते वक्त पेशेंट की फिटनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी डिसीज बेयरिंग कैपेसिटी और डिसीज की स्ट्रेंथ, इन दोनों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए आपकी एक्चुअल चिकित्सा का डायरेक्शन या चिकित्सा की इंटेंसिटी इन 3 चीजों के ऊपर ही निर्भर करती है। एक तो क्रियाकाल कौन सा है, आतुर क्या है और व्याधि बल क्या है। और जब हम इस Dr. तरह से आगे Srikanth, प्रोसीड, यस, sorry for interruption. There is request from some participants to use English language as they are not able to understand. तो थोड़ा श्योर बहुत श्योर इंग्लिश भी यूज करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पे, तो इट विल बी हेल्प। श्योर 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 या श्योर श्योर। So if you understand the correct stage of the disease and if you analyze the patient's strength to handle the disease and disease intensity, then only we can plan out the actual treatment protocol based on medicines, diet, and patient's routine. And if you plan out in a such a way, then only we can actually win the disease or we can stop the proceeding of the diseases. That's why I should say ki sanchaya aparata dosha. If we wins the dosha during sanchay stage only, then they don't get vitiated ahead and we can stop the disease progression. But if you don't, then step by step the disease will get intense and it actually gets expressed in its full form. And at that time, at every stage, we have to change the treatment protocol. So we cannot follow the same protocol at every stage. We should not. हर स्टेज के लिए कुछ ना कुछ आपको ट्रीटमेंट एड ऑन करनी पड़ेगी। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट the symptoms which have appeared in sanchaya avastha are going to enhance and add up more and more symptoms in every stage. तो संचय अवस्था आके गई, that doesn't mean कि संचय के लक्षण आके गायब हो जाएंगे and then we will see the only प्रकोप लक्षण, not like that. संचय के लक्षण के ही आगे इंटेंसिटी बढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप प्रकोप प्रसर के सिम्टम्स एक्सप्रेस होते जाएंगे and they will get add on more and more and more. So we have to design protocol, treatment protocol at this stage, understanding the stages, understanding the patient's strength to handle the medicine strength as well as disease intensity and disease में components कितने involved है उन सबको देख के. This is all theoretical if you don't know how to see these things in the case. So let's have a case study. I will request everyone that everyone should put down the points regarding the symptoms and dates they appear so that they can interpret the doshas, dhatu, agni and ashay or srotas involved in that. जो भी सिम्टम्स डेट्स वाइज आगे केस में आने वाले हैं उनको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करें. यू जस्ट पुट डाउन द दोषाज, अग्नि एंड आशय या कोई भी स्रोतस जो आपको लगता है कि उस सिम्टम से रिलेटेड है उसका आगे ब्रैकेट में नोट डाउन करते जाएं, सो दैट व्हाइल वी आर स्टडिंग द षटक्रिया काल वी कुड अंडरस्टैंड कि ये इस पेशेंट में ये अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग डेट्स में किस स्टेज को इंडिकेट कर रहे हैं. सो एट द एंड वी कैन अंडरस्टैंड द केस इन द कंटेक्स्ट ऑफ षटक्रिया काल. ठीक है. द फर्स्ट केस एंड ओनली वन केस where patient A comes to my clinic on 24th Feb 2019 with the age 48 years, male patient having a service in a account section of a private company. Recently he undergone a cerebral ischemic attack just 3 months back at the end of October 2018, where he was hospitalized for up till 1.5 months
and then he got discharged with the tag that he is a hypertensive patient and he should take medicines for the lifelong time. He came to me on 24th Feb with the symptoms like slurred speech and weakened fine motor skills of the hands. But patient's main complaint was he was complaining about the late initiation of the sleep. He was not able to sleep as on time. The sleep was breaking, and whenever it breaks in midnight, he used to have fear feeling. Tinglings in hands was there. As written on the discharge paper, he was a now tag patient of hypertension. He had the history of bleeding piles in 1988 when he was at that time he got operated for the same, and he used to be, and right now he is the patient of urgency. Means he used to run for the defecation after the meal. Father family history में his father was having a hypertension, and then he got hemiplegia and he died in that stage only. मदर हिस्ट्री में उनकी माताजी को ब्रेस्ट कैंसर था एंड शी गॉट ऑपरेटेड फॉर दैट एंड आफ्टरवर्ड्स she got died due to metastasis of the same condition. अब अगर इन सिम्टम्स को हम देखें, सो कैन यू रिकॉग्नाइज कि कौन से सिम्टम्स कौन से सिस्टम या स्थान से रिलेटेड है, लाइक स्लर स्पीच एंड वीकन मोटर कंट्रोल are associated with the which dosha sthanas? You can put your answers in a chat box so that I can understand that you are getting me or not. Slurred speech और weaken motor control ये कौन से दोष के स्थान से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं? Anybody? वात दोष, ओके राइट. टाइप ऑफ एनी वात दोषा और वात दोष के टाइप में से कौन सा टाइप? Slurred speech and weakened motor controls. It's regarding Karmendriya and Gyanendriya. Yes, it's Pran. Okay, that's good. Sometimes awakening. Okay, Udan. Okay, Udan is more related towards the bala than the action. Again, awakening in the midnight or in the early morning with the breaking of sleep. Nidra Bhransh is related to the which dosha? Vayu, right? Vata dosh, right? Tingling in hands. Vata dosh, right? Bleeding piles अगर हम कंसिडर करें तो उसमें दोष रक्तार्श, दोष धातु और अग्नि क्या हो सकते हैं इन्वॉल्व? पित्त, okay, answers are going on पित्त, व्यान, okay. पित्त रक्त एज अ मांस, रक्त रस मांस, पित्त रक्त, फाइन. ये आप जो भी लिख बता रहे हैं जस्ट नोट इट डाउन. आप जो भी कंसिडर कर रहे हैं जस्ट नोट इट डाउन सो दैट वी कैन गो विद द संप्राप्ति एंड वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इट वाज हैपन इन दिस केस. देन अर्जेंसी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद तुरंत स्टूल के लिए भागना, ये किस दोष के टाइप के अंडर आएगा? कौन से स्थान के अंडर आएगा? दोष वात पित्त कफ के दोष की बात कर रहा हूं. कौन से स्थान के अंडर आएगा और अग्नि का क्या रोल होगा इसमें? समान, ओके. और किसी को ट्राई करना है?
सामदोष आमाशय, ओके. लो अग्निबल, ओके. अपान एंड अग्निमांद्य. ये हमारा एक रफ वर्क होगा. जैसे जैसे हम डीप डाइव करेंगे सिम्टम्स में, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली अग्नि की अवस्था क्या है, दोष कौन से इन्वॉल्व है, एंड स्थान में सिर्फ पक्वाशय है जो अर्जेंसी में क्रिया है इन्वॉल्व है, या ग्रहणी से भी काम शुरू हो रहा है. ठीक है, वी विल गो अहेड. सो पेशेंट वाज एग्जामिन्ड ऑन टेबल. नाड़ी, प्राण उदान और पित्त प्रधानता रही. मल में it was 3 times a day urgency. Mal was loose and was sinking in water. Mutra pravritti was 5 times in a day, 1 times in a night. Sweda was profuse always, but with no smell. ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे कि स्मेल स्वेद में कब रहेगा, एंड व्हेन इट इज नॉट स्टिंकिंग बट स्टिल इट इज प्रोफ्यूज. सो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपके पास हमेशा दिमाग में रेडी होने चाहिए. Shudha was, he was unaware of the appetite, but he was eating on time and having the habit of fast eating. जिह्वा उपलब्ध थी. निद्रा was, initiation of sleep was late and it was always breaking, and whenever it breaks it was, there was no further sleep was there. जब भी वो सुबह उठते थे इट वॉज ऑलवेज देयर, आलस्य वॉज देयर. नेत्र में अर्म था. अर्म यू नो में यू आर नोइंग दैट शुक्ल का तो व्याधि है. एंड आविल एंड पीतता वर्ण वॉज देयर. यकृत प्रदेश में रेजोनेंट साउंड वाज देयर ऑन परकशन. टेंडरनेस वाज नॉट देयर. लिहा में डल नोट था एंड एब्डोमेन वाज ब्लोटेड. At that time, medicine was going where antihypertensive, anticoagulant, anti-anxiety, B complex, and antacid. Total, there was 7 tablets going on twice a day. So my diagnosis at that time was, it is that condition was developed from Vidagda Jirna, which got transferred into Grahani, then Vyanavayu Dushti, and Ekangagata Vat. So as it was a Vyakti Avastha, so I have to consider the both conditions, that is the involvement of the sthan and origin of the disease. तो विदग्धा जीर्ण और एकांगत वात में इन्वॉल्व दोष एंड स्थान, इन दोनों को देखते हुए चिकित्सा का प्लान किया गया. एंड जो कंप्लेंट्स थे उनमें रिजॉल्व, या कंप्लेंट्स कैसे रिजॉल्व होते गए, यू कैन चेक ऑन द चार्ट. So loss of appetite was resolved by within 7 days with the feeling of hunger. Profuse sweating resolve हुई एक 6 और 9 15 दिन में. Sleep issue got resolved within 21 days. Then urgency of stool was resolved by 2nd month. Tongue thickness और tongue में जो thick coat था, it got resolved by the end of 3rd month. And slur speech on weakened motor control जो थे, fine motor control, those were got resolved on 27th June 2019. After that, dosha bal was less, and so I was planning for the virechan. But by the end of October 2019, patient skipped the treatment as he was feeling that he was now all well and he don't need medicine furthermore. तो पेशेंट वहां से उन्होंने ट्रीटमेंट स्किप कर दी. He left, but somehow during every ऋतुसंधि काल he used to face some issues, and he used to call me. So I asked him and I insisted him to come back for the virechan, and so he, after 2 years, on October 20 to 21, he came for the virechan. He got the virechan panchakarma at that time. Then again on the next year, that is the 25th April 2022, in Vasant Ritu, he came with the complaints nausea, vomiting, followed by diplopia, blurred vision, giddiness, weakness, mild slur speech, head heaviness. Again, a symptoms, उसका काल, write it down and mention the doshas involved in it. दोषों के स्थान और अग्नि जो इन्वॉल्व है वो आप राइट डाउन कर लीजिएगा. जिसके इन कंप्लेंट्स के लिए उसको ट्रीटमेंट दी गई, which was there for 17 days, and the complaints were resolved completely. Again, I asked him to continue the medicine for proper treatment or continue to treatment till the rasayan chikitsa, but he refused. He again went back after. Then again on January 30th, he came back with the complaints with a high-grade fever, nausea, vomiting, weakness, ananya vilhasha, sleeplessness. उस समय ज्वर को अत्यधिक देखते हुए उसको ज्वर की चिकित्सा की गई. ज्वर was resolved, got resolved within 7 days, but irritation
repeated talking the same things, and self counseling like talking was continued. ये सिम्टम्स जाने के लिए ऑलमोस्ट 1 महीना लगा, बट स्टूल का लूजनेस एंड अर्जेंसी वो उस समय भी थी. अगेन जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई, पेशेंट भाग गया, जो वापस आया अक्टूबर में फॉर विरेचन. बट एट दिस टाइम आई नेवर गेव हिम द विरेचन. काउंसलिंग की उसकी एंड आई ट्रीटेड हिम फॉर अर्जेंसी. अग्निवृद्धि के लिए फिर बाद में संशमन पैटर्न में स्नेहपान शुरू किया. पेशेंट को लगा एक डिब्बा खत्म कर दिया तो बात खत्म, अब स्नेहपान करने की जरूरत नहीं. देन अगेन ही स्किप द मेडिसिन. 14 जनवरी को जब कंपनी की तरफ से टोटल बॉडी हेल्थ चेकअप हुआ, एट दैट टाइम ही गॉट द रिपोर्ट्स व्हिच वर रिटन ऑन द चार्ट. सो अगेन इन मार्च ही केम बैक कि नहीं डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, ये रिपोर्ट्स वापस इंक्रीज आया, ऐसे कुछ करना है. देन अगेन आई गिव हिम ट्रीटमेंट, बट एट दैट टाइम आई आस्क हिम दैट आई विल गिव ट्रीटमेंट ओनली एंड ओनली इफ यू फॉलो द स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल आई विल गिव टू यू. उसने मान लिया. 16 जून को उनके रिपोर्ट स्टेटमेंट के बाद आपके सामने हैं जो आए, एंड देन उसको स्ट्रिक्टली माइंडफुल ईटिंग एंड सदवृत्ति के लिए एडवाइस किया गया. अब इस पूरे केस में षटक्रिया काल कैसे कैसे हुआ ये आप लोग ही फाइंड आउट करोगे जैसे जैसे हम षटक्रिया काल की एक एक काल को समझते जाएंगे. तो आपके पास सिम्टम्स है, सिम्टम्स कब अपीयर हुए वो टाइम पीरियड है, सिम्टम्स का एक पैटर्न है, सिम्टम्स का एक सिंड्रोम टाइप क्लबिंग है, और उसमें आपने एनालाइज करके लिखे हुए दोष, अग्नि, आशय, स्रोतस, इनकी लिस्ट आउट है. ठीक है. सो वी विल प्रोसीड फॉर द षटक्रिया काल. उससे पहले पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या दी. सो ट्रीटमेंट वाज गिवन जस्ट सिंपल वे, लंघन, संसर्जन क्रम और स्टेजेस वाइज कुछ मेडिसिन यूज किए गए जिनकी लिस्ट आपके सामने है. सो वी विल गो फॉर षटक्रिया काल. द फर्स्ट क्रिया काल इज संचय. यूजुअली संचय माने क्या, तो हम समझते दोषों की वृद्धि होना यानी संचय. इट्स नॉट लाइक दैट. According to text, वृद्धि is of two types. One is संहति रूप वृद्धि, means something is getting accumulated and that वृद्धि is called is a संचय. Whereas when it is gets melt down and expands, then it is called as a prakop. Where it happens at the locations where doshas are indicated, the locations which are indicated to the dosha. दोषों के जो भी स्थान हम पढ़ते हैं वाग्भट, चरक, सुश्रुत तीनों में से, उन स्थानों में ही दोषों के अपने स्वरूप में वृद्धि होना इज कॉल्ड संचय. व्हाई इट हैपेंस? सुश्रुत सेज इट्स ड्यू टू, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड द रीजंस. व्हिच आर दोज आर द ऋतुचर्या अध्याय. सो ऋतुचर्या अध्याय में कहे गए अकॉर्डिंग टू सीजन शरीर में होने वाले दोषों की संचिति, वृद्धि इज कम और कम्स अंडर द संचय का क्लास. Sanchaya stage is that where doshas get accumulated due to seasonal effect. हम उन seasons को और थोड़ा पढ़ते हैं ध्यान से, then we get the actual cause behind them, and those are changes in agni and gunas. हर season में हमारे body में अग्नि की stage बदलती है. There are changes in gunas surrounding us and within the body, and that's actually becomes the reason for the dosha sanchayas. So if we collaborate them, then we get a chart like this. That Vata get Sanchay Avastha when Ushna accompanies the Rukshadi gunas. Pitta get Sanchay Avastha when Shita accompanies the Tikshadi gunas. And Kapha get Sanchay Avastha when Shita get accompanied by Snigdhadi gunas. How does it happens? दोष संचय 3 तरीके से होता है. एक तो है थ्रू महास्रोतस, मीन्स वॉट एवर वी ईट ऑलवेज अंडरगो 3 अवस्था पाकास, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक एंड कटु अवस्था पाक. ड्यूरिंग दैट फेजेस कफ, पित्त एंड वायु आर फॉर्म विच एक्चुअली नरिशेस द ऑल ओवर द बॉडी अदर दोषास. और इस प्रोसेस में अगर एक कफ, पित्त, वायु विकृत या वृद्धि स्वरूप में या दुष्ट स्वरूप में पैदा होते हैं, देन दे बिकम द रीजन फॉर द संचय. Second, स्वस्थानगत संचय. How does it happen? Repeated impact of internal factors like weight. If we have an habit of always holding the urgency, like motions आए हैं, gas pass हो रहे, we are holding it repeatedly, then that vegavodh itself causes impact on apana kshetra and enhances
apan vayu, which leads to apan sanchay. Same way, repeated impact of external factors, like if we are traveling or riding a bike without helmet, the consistent impact of air on a face actually impacts the prana dosha sthan, which leads to pratishay disease. So ये केसेस हमें बार बार मिलते भी है ऐसे कि पेशेंट बाइक राइड कर रहा है विदाउट हेलमेट एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू हैव स्नीजिंग प्रॉब्लम और राइनाइटिस प्रॉब्लम, ऑल दैट. Third is which we always don't think about it, but it is mentioned in the main 3 reasons of every Vyadhi. Asatma Indriyartha Sanyog. The 5 sense organs, when they are combined with Hina, Ati and Mithya Yog, they always creates Kha Vaigunya or Dhatu Durbalya, and that leads to Dosha Sanchaya Avastha. As Dosha Sanchaya is always a Alpa Bala, Atyalpa Bala, the expression of symptoms are not that much severe. दोषी संचय की अवस्था में सिम्टम्स आपको हमेशा कम ही दिखाई देंगे और ऑन ऑफ दिखाई देंगे. दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट डोंट कम फॉर द ट्रीटमेंट. सिम्टम्स क्या क्या है उसके? तो अकॉर्डिंग क्लासिक्स फॉर वात इट इज शब्द पूर्ण कोष्ठता, पिता भासता एंड मंदोष्मता फॉर द पित्त, अंगानाम गौरवम एंड आलस्य फॉर कफ, एंड वन कॉमन सिम्टम इज देयर, दैट इज अ चय कारण विद्वेष. लेट अंडरस्टैंड देम स्टेप बाय स्टेप. Stabdata and Koshtata. Stabda Koshtata have 2 words, Stabda and Koshta. Stabda means stagnancy of the movements, and Koshta indicates about Mahasrotas, which is a Vatasthana and specifically Apanasthan. So Stabdata in Apanasthan, if we consider it, it comes regarding the Pakvashay and a Sanchar Kshetra of Apan, that is a Mutra Marga, Apatya Marga, Guda Marga. So if we observe keenly regarding the movements in this area, when Stabda Koshtata is there, the lower gati or lower what should say movements are observed in these areas, but these symptoms are not a regular one, they are always on and off. Second, Purna Koshtata, usually after defecation the stomach should feel lightness and it should not bloat, but in Purna Koshtata symptom there is a Udara Gaurav, that is heaviness and bloating after defecation. So overall Sabda Koshtata and Purna Koshtata are more related to the Apan Kshetra. So how Apan Kshetra or Apan Vayu works and how we can examine it. The Prakrit Apana with its Ruksha, Ushna and Katu Gunas, when acts in a proper way, in a Vega Kal, that is a Brahma Murta Kal, that is a Vata Kal, we get a proper form, light stool, properly digested and well formed stool which floats on a water. Also, the quantity is that much that we feel lightness in the abdomen after the passing stool. Whereas if the Apan is Vikruta, the stool is not fully digested, it is either loose or liquid or semi-solid, and even after passing a stool, we don't feel lightness in the abdomen, we always feel bloated or heaviness. And that we can tally also by abdominal examination. How? That's another topic for the explanation. पिता व भासता, शरीर के जिन पार्ट्स में एक येलो शेड दिखती है पित्त की, वहां पर वो एनहांस हो जाना, दैट इज पिता व भासता. मंदोष्मता इज रिगार्डिंग योर अग्नि. अगेन अग्नि कैन बी एग्जामिन्ड बाय 2 ways, जरण शक्ति एंड अभ्यवरण. जरण शक्ति दैट इज the time it takes to digest, and अभ्यवरण शक्ति that is a quantity you eat in a single sitting. तो ये दोनों चीजें लेस हो जाती है, पेशेंट can't eat more or can't eat in a proper quantity, and also though he is eating less, still he gets a lot of time to get it digested. Kapha sanchay, there is a post meal abdominal heaviness is a normal condition if it is related to the left hypochondriac area and left lumbar area, but if it gets extended to the chest and throat in addition to this, then it is always considered as a gaurav. Also in this heaviness or gaurav, the time of gaurav or heaviness is always prolonged. It is uneasiness, there is an uneasiness in the movements, uneasiness in the joint movements, and no freshness even after 2 or 3 hours of ingestion. Alasya, as we know, that even though having a strength, not able to or not having the enthusiasm to do the work, it is called alasya. अगर इसको हम डाइजेशन के प्रेजेंटेशन में देखें, then extended digestive period, sluggish circulation,
and retention of the waste products in the body, it can be considered as a alasya. Another symptom, which is in general, that patient usually hates the causative factors and try to have the exactly opposite gunas by any other means like food or activity, anything. Usually, this is the first chance where we can treat the patient with very ease and can revert the patient to the normal stage. But usually public ही इसके लिए aware नहीं होती, so they don't come for this to us. तो ये हमारी या एक हमारे एक जनरल फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है दैट जिनसे हम कनेक्टेड है, जिन फैमिली से हम कनेक्टेड है, उनको इन चीज़ों के बारे में अवेयर करें ताकि वो संचय अवस्था में ही ट्रीटमेंट ले लें और डिसीज के प्रोग्रेशन से बच सके. What are the treatment we can afford or offered? That is Langhan, Pachan. That is the simplest way we can tackle this stage. In case अगर दोष उत्क्लेशित है तो शोधन if needed, but that is occasionally, and simple स्वस्थ वृत्त पालन, अग्नि का पालन करने से भी संचय अवस्था से आप बाहर निकल सकते हो. सेकेंड स्टेज प्रकोप, where दोष अभी इतने बढ़ चुके हैं that they are ready to move out of their locations. What happens? There is two way. प्रकोप जो है दो तरीके से दिखता है. एक चयपूर्वक मीन्स सीजनल, हमने रूटीन फॉलो नहीं किया, सीजन में हमने गलतियां करते रहे और उस सीजन के बाद सीजन में दोष का संचय हुआ, दैट इज चयपूर्वक प्रकोप. जो अगले सीजन में प्रकोपित हुआ, दैट इज कॉल्ड चयपूर्वक प्रकोप. इन दिस केस वी यूजुअली हैव टू गो अंडर संशोधन, दैट इज पंचकर्मा. But if we are following the proper seasonal routine, and even though following this routine, after season change, we suffer with the dosha prakop, then we can take a Sanshavan Chikitsa, and that's enough for the get rid of that stage. ये कुछ हेतु है जो सुश्रुत आचार्य सुश्रुत जी ने उस चैप्टर में लिखे हुए हैं, जहाँ पर कुछ हाईलाइटेड आपको हेतु दिखेंगे. सात्म्यता हमें वात प्रकोप के विषमासन अध्ययन वी यूजुअली डोंट कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ वात प्रकोप. तो ये थोड़ा दिमाग में रख ले, क्योंकि हमने जो केस देखी थी इससे पहले उसमें ये हेतु वेयर एज अ पॉजिटिव फैक्टर. प्रकोप काल, ये वात प्रकोप है कंफर्म कैसे समझे? तो वात प्रकोप की जो सिम्टम्स है ये स्पेसिफिकली इन्हीं टाइम पीरियड में दिखाई देते हैं. शीतकाल, अभ्र, प्रभात, घर्मांत यानी वर्षा काल में, जस्ट बिफोर द सनराइज, अपराह्न, इन द इवनिंग एंड आफ्टर फूड गेटिंग डाइजेस्टेड कंप्लीटली, इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं. लक्षण दो तरीके के लक्षण है, कोष्ठतोद एंड कोष्ठ संचरण. जैसे मैंने कहा कि संचय अवस्था ही आगे प्रोसीड हो रही है तो शब्द कोष्ठता जो है इट गेट एनहांस एंड रुका हुआ वायु वही पे प्रिकिंग सेंसेशन शुरू कर देता है. इट गेट्स मोर एनहांस एंड देन वही वायु उसी स्थान में रोटेटिंग या मूवमेंट शुरू कर देता है, दैट इज कॉल्ड कोष्ठ संचरण. यूजुअली पेशेंट इस कंडीशन में अगर अपने पास आते हैं तो दे ऑलवेज से दैट बर्पिंग के बाद या गैस पास होने के बाद आई फील बेटर, बट अगेन आफ्टर सम टाइम आई गेट द फीलिंग ऑफ ब्लोटिंग एंड स्टकिंग इन समवेयर. तो ये जो चीज है दैट इंडिकेट्स एक्चुअली वात प्रकोप. On examination on table, we can see that patient's abdomen is bloated and it is enlarged. पित्त प्रकोप, अगेन इसमें आयास, उपवास और मैथुन, ये यूजुअली हम वात प्रकोप से रिलेटेड हेतु समझते हैं बहुत बार, बट इट इज दे आर द कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर पित्त प्रकोप ऑल्सो. अगेन पित्त प्रकोप है ये कंफर्म कैसे करें? तो उष्ण गुण से वृद्धि, आर्तव काल यानी ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में इसके सिम्टम्स एनहांस हो जाते हैं. मध्याह्न और अर्धरात्र में सिम्टम्स एनहांस हो जाते हैं. जैसे कि हमारे पेशेंट में रात में 2-3 बजे उसकी नींद खुलती थी एंड देन he was not able to sleep, so it denotes that it was a पित्त प्रधानता. जिरेत या अन्य खाना जैसे ही डाइजेशन फेज में आता है, पेशेंट गेट्स एनहांस सिम्टम्स. व्हाट आर द सिम्टम्स? अम्लिका, अम्लोदगार, पिपासा, परिदाह. पित्त यहाँ पे जो बन रहा है सेकेंड स्टेज में अवस्था पाक में, वो क्वांटिटी वाइज भी ज्यादा है, प्रॉपर्टी वाइज भी ज्यादा है, एंड द फेज इज ऑल्सो प्रोलॉन्ग. और इसके साथ वायु की उदावर्त गति जुड़ने की वजह से अम्लिका और अम्लोदगार ये सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं. सेकेंड स्टेज जो पित्त की है, अवस्था पाक की है, विदग्ध अवस्था, ये अगर इसमें तीक्ष्ण और उष्ण गुण प्रमाणता बढ़ जाते हैं, द्रव गुण कम हो जाता है, देन ओनली पेशेंट कंप्लेन्स अबाउट recurrent thirst and burning sensation all over the body. इसमें अगर एग्जामिनेशन करें तो नाभि असमंत यानी अम्बिलिकल एरिया में एंड आमाशय एरिया, दैट इज बिटवीन द स्टमक एंड नेवल एरिया, बिटवीन द स्टर्नम एंड नेवल एरिया,
जो एरिया है उसको अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो मिडल पोर्शन इज ऑलवेज टेंडर एंड इट शोज पेन ऑन परकशन, सॉरी पल्पेशन। कफ प्रकोप अगेन समशन अध्यशन, यहाँ पे अध्यशन अगर हमने अगर याद हो तो वात प्रकोप में भी एज इट वाज अ कॉजेटिव फैक्टर और यहाँ पर भी है। समशन अध्यशन वाज अ usually causative factor which we ignores or we don't get them into consideration, बट ये थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि इस पेशेंट में जिसके हमने केस देखे उसमें ये पॉजिटिव फैक्टर्स थे। अगेन कफदोष का प्रकोप कन्फर्म है कब समझे, तब शीत से जब उसके सिम्टम्स एनहांस होते हैं, शीतकाल में वसंत में जब ये सिम्टम्स एनहांस होते हैं तब उसका प्रकोप कफ का प्रकोप है, ये समझे। अगेन दो सिम्टम्स गेट एनहांस और इंक्रीज ड्यूरिंग पूर्वाह्न एंड प्रदोष काल एंड जस्ट आफ्टर द ईटिंग सिम्टम्स एनहांस हो जाते हैं। क्या सिम्टम्स है, तो उल्लास अन्न द्वेष। यूजुअली जो खाना खाया जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ डाइजेशन, द्रवत्व पिच्छलत्व एंड विदग्ध अगर बढ़ जाता है और प्लस फर्स्ट डाइजेस्टिव फेज अगर प्रोलॉन्ग होती है तो अभिषंद और द्रव गुण की वृद्धि होते हुए कफ प्रकोप के लक्षण पैदा होने शुरू हो जाते हैं, विच आर मोस्टली रिलास एंड अन्न द्वेष। नाउ यू कैन recall the case where in the second stage he came in a Vasant Ritu for the nausea and vomiting. He came with the complaints of nausea and vomiting. ठीक है, अब इसमें एग्जामिनेशन में क्या दिखता है, तो आमाशय प्रदेश यानी अगेन स्टर्नम से लेके नेवल एरिया तक अगर आप चेक करते हो तो वहां पे ब्लोटिंग एंड टाइटनेस फीलिंग आती है पेशेंट में। ठीक, चिकित्सा, इसमें चिकित्सा जब करनी की स्टेज आती है या प्रकोप आप कंफर्म कर लेते हो इट्स प्रकोप अवस्था, देन वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंग टू स्थान। पक्वाशय में दोष के लक्षण है, पश्चिमानाशय में है या आमाशय में है। अगर इस समय उत्प्लेशित अवस्था में है पेशेंट तो या पेशेंट में दोष प्रकोप उत्प्लेशित अवस्था में है तो पेशेंट को बिना पूर्व कर्म के भी हम पंचकर्म कर सकते हैं। बट इफ द सिम्टम्स आर देयर बट दोष चलायमान नहीं है, दे आर नॉट मूविंग एंड व्याधि व्यक्तावस्था है, तो पेशेंट को पूर्व कर्म के साथ ट्रीटमेंट देने की जरूरत हो जाती है। नेक्स्ट प्रसर काल, इट्स अ थर्ड स्टेज वेयर वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रीट द पेशेंट, बट इफ वी मिस देन द पेशेंट अगेन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेज। हाउ टू अंडरस्टैंड, प्रसर के लिए यूजुअली कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स है जो चरक जी ने बताया सूत्रसन अध्याय 21 में, एंड वी ऑल बाय हार्टेड दिस श्लोक ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ द बीएमएस, दैट इज व्यायामात् उष्णता तीक्ष्णात् हितस्य अनवचारणात् कोष्ठा शाखा मला यांत्रिक दुतत्वात् मारुतस्य च। बट यहाँ पे एक चीज हम यूजुअली मिस आउट कर देते हैं, दैट प्रेशर वी थिंक दैट यस दोष बढ़ रहे हैं एंड दे आर क्रॉसिंग देयर लिमिट्स, नॉट लाइक दैट। देयर इज ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ संप्राप्ति गोइंग ऑन। एक है प्रेशर टाइप 1 वेयर दोष वैगुण्य इज देयर बट दोष प्रमाणता वृद्धि वाज नॉट देयर। दोष अपने अपने क्वांटिटी में ही है, प्रमाण में ही है, बट उनके गुणों में बदलाव आ चुका है। सो आचार्य गिव द एग्जांपल ऑफ किन्व पिष्ट and उदक। इफ यू आर मिक्सिंग yeast, flour, wheat flour and water together, though they are in the same quantity, still the dough which you make after the mixing them start to get expanded after some time. उसमें जो fermentation होता है that causes it to get expand more. ये जो expansion है डो का इट्स कॉल्ड प्रसर अवस्था। तो सेम सिमिलरली अगर इसको पकड़े तो शरीर में दोष अपने ही प्रमाण में है बट उनके गुण बिगड़े हुए हैं, लाइक कफ में द्रवता बढ़ी है, पित्त में अम्लता बढ़ी है, और ऐसे दोष अगर कंबाइन हो जाते हैं देन दे गेट्स इन अ प्रेशर स्टेज विदाउट गेटिंग इंक्रीज इन क्वांटिटी। एंड सेकेंड टिपिकल प्रेशर अवस्था वेयर दोष एक्चुअली गेट एनहांस इन देयर क्वांटिटेटिव मैनर। संप्राप्ति कैसे घटती है, यहाँ पे दोष स्वस्थान से प्रकोपित होकर निकल जाते हैं, मार्गस्थ आते हैं as they are traveling to the Rasava Srotas and they are reaching to the Shaka Sandhi Marma Dhatu, जहां पर जाने के बाद when they stabilize there then they create symptoms at that location. So संप्राप्ति यहाँ पे दो स्टेज में आपको मिलती है, एक मार्गक that is when they are traveling and second when they are residing at some location slowly step by step molecule by molecule atom by atom like that. इसमें दोष अगर बलवान रहे, if they are strong enough to cause the issues then they get easily settled on
the Kavaigunya, and they create a Vadivyakta avastha. But if they are not capable to cause any symptoms, then they usually get settled in a minute quantity in a Srotas, Dhatu और आशय where Kavaigunya is there, और वहां पे रह के वहां के उस स्ट्रक्चर में सपोज अगर वात दोष रिसाइड होता है आमाशय या हृदय में, तो हृदय में जो धातु स्रोतस और उपधातु इन्वॉल्व है, उनमें ये धीरे धीरे अपने इम्पैक्ट को दिखाना शुरू करता है, एंड स्लोली दैट धातु स्रोतस एंड उपधातु स्टार्ट टू गेट डिटोरेटेड इन देयर फंक्शंस. या अगर और डीप डाउन सेटल होना शुरू कर देता है, देन स्लोली यू गेट ऑर्गन डिफॉर्मिटी. तो हम जब ट्यूमर या इसकी बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गन में ट्यूमर बनना है, किसी भी ऑर्गन में स्ट्रक्चरल एनोमली बन जाना, ये चीज आती कहाँ से है? तो दोष वहां पे जब रिसाइड होकर डीप डग डाउन करते हैं, देन ओनली यू गेट अ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आफ्टर सम टाइम. एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं? बाय इल्यूमिनेशन, दैट इज बाय लुकिंग एट द स्रोतस. जितने भी 13 स्रोतस उसके दिए गए हैं हर धातुओं के बारे में, और बाकी अन्न व रस व प्राण व उदक व इन स्रोतों के परीक्षण से हम ये कर सकते हैं. फर्दर एंडोस्कोपी ऑल्सो हेल्प्स इन दैट. एंडोस्कोपी में अगर हम नीचे दिए हुए लक्षण दाह, राग, पाक, उपचय, संकोच, रुक्षता, इफ यू ऑब्जर्व फॉर दिस symptoms, then we can easily diagnose the dosha prasar avastha in those locations. What are the symptoms? विमार्ग गमन. प्राकृत वायु जब अपने मार्ग से हट जाता है, then it is called विमार्ग गमन. And atop, when it is a painful bloating, then it is called atop. विकृत हुआ वायु जिन जिन स्थानों में प्रवेश करेगा, उन स्थानों के अवयव और बलानुसार उन अवयवों के प्राकृत कर्म जो है, मतलब those organs will not work with their full strength and capacity. For example, अगर आपको या आपकी हैबिट है रिपीटेडली अपान वेग को रोकने की, अपान वायु के क्षेत्र में जितने भी वेग आते हैं उनको रोकने की रिपीटेड हैबिट है, then you are going to suffer with a udavarta condition. Here udavarta is not a disease, it is just a revert back condition of the अपान वायु, जो आगे चल के समान और पाचक पित्त के एरिया को कवर कर लेती है, और समान और पाचक पित्त की अपनी फुल स्ट्रेंथ कैपेसिटी कम होते हुए वहां के डाइजेशन प्रोसेस में इंपेयरमेंट आनी शुरू हो जाती है. देन फर्दर देन अपान goes upward, impacts the amashay, and at that time where you start having the symptoms like repeated burps, that's why अर्श में उद्गार बाहुल्य symptoms क्रिएट होना शुरू हो जाता है. आमाशय तक कफ को बाहर निकलने का प्रयास उस समय दिखाई देता है. अगर यही आपान तिर्यक गति हो जाए तो बाधिर्य, मनोभ्रंश जैसे सिम्टम्स उदावर्त में दिखाई देने शुरू होते हैं. पित्त दृष्टि के लक्षण क्या क्या मिलते हैं? अगर लोकलाइज सिम्टम देखे जाए तो हस्तदाह, नेत्रदाह, दैट इज ओश, चोष यानी चुषते लाइक sucking like an action with a burning pain, that is चुष्यते वेदना. परिदाह, that is overall burning sensation. अगर यहाँ पे साम पित्त इन्वॉल्व हो तो दाह, पाक एंड रैशेस और अर्टिकेरिया जैसे लीजन्स पैदा होते हैं. इफ निराम पित्त इज इन्वॉल्व, देन द लोकल दोषास, सॉरी लोकल धातुस गेट स्टार्टेड टू गेट डिटोरिएटेड. उनका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है. शोष एंड दाह ये सिम्टम दिखते हैं. मीन्स दोज पेशेंट विच आर हैविंग प्रॉपर हेल्दी physic and still having the urticaria, there we can consider the Sama Pitta, and where the patient's muscle part or the bulge part is getting deteriorated and burning sensation is there, then we should consider it as a Niram Pitta. Again धूमायन, that is a धूमय उद्गार, ये सिम्टम आपको एसोसिएटेड दिखता है पित्त प्रसर में. कफ प्रसर में अरोचक, अवस्था पाक मंद होने से आमाजीर्ण, उससे साम आहार, उससे रस और बोधक कफ की दृष्टि, एंड देन अरुचि. दिस इज द फोरमोस्ट इंडिकेशन फॉर लंघन. पेशेंट में अरुचि है एंड इफ यू डोंट गिव अ लंघन, देन यू आर मिसट्रीटिंग द पेशेंट, और जो साध्य अवस्था की पेशेंट को आप कष्ट साध्य में ट्रांसफर कर रहे हो. अविपाक, योग्य काल में आहार का डाइजेस्ट ना होना और इंडाइजेशन के लक्षण दिखना, दोनों भी चीजें अविपाक में आती है. अंगसात, साम आहार का सर्वदेह में प्रसर होने की वजह से सारे बॉडी में, दो इट इज कैपेबल टू डू द वर्क, स्टिल पेशेंट इज फीलिंग लेथार्जिक, दैट इज अंगसाद. और छर्दी, अगेन जैसे हमने पहले ही समझा, अभिछंद और द्रवगुण बढ़ने से अपक्व या अपूर्ण मधुरावस्था पाक वाले आहार का उल्टी होके बाहर निकल जाना. चिकित्सा क्या करें? तृतीय अवस्था पाक इज स्टेज वेयर अभी भी दोष स्थान में स्टेबलाइज नहीं हुए हैं. So we should consider more precisely on, we should focus on more precisely on doshas,
और उनकी अगर चिकित्सा हम करते हैं यानी कोष्ठगत दोषों की और मार्गस्थ यानी रसगत दोषों की हम चिकित्सा करते हैं, देन वी कैन रिवर्ट बैक दिस स्टेज टू द बैक टू संचय अवस्था और टू द स्वस्थावस्था। अगर दोष स्थान तक पहुंच चुके हैं देन स्थानिक दोषों की चिकित्सा भी एड ऑन करनी पड़ती है। सो पचन, मल विसर्जन और स्थानस्थ धातुओं का बल बढ़ाना, इन 3 चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। सो प्रसर अवस्था में आपको डाइजेशन तो प्रॉपर करना है, दोषों का पाचन तो करना ही, एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो गो फॉर द अनुलोमन, दोषों का अनुलोमन भी साइड बाय साइड आपको चालू रखना पड़ता है। एंड इफ दे आर सेटल्ड समवेयर देन उस स्थान के धातुओं की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ द्रव्य ऐड करना पड़ता है। तो रस जितना आपका सही रहे और प्राकृत रहे उतना प्रसर अवस्था आप रिवर्ट बैक कर सकते हो। तो रस की प्राकृत अवस्था को मेंटेन रखने के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, विच इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। फोर्थ स्टेज दैट इज स्थान संशय, which is the fourth opportunity, which is the fourth opportunity where we can actually stop the progression of disease. यहाँ पर दोष दुष्ट समूर्छना एक्चुअली होनी शुरू हो चुकी है। होप एवरीबॉडी विथ मी, आई एम नॉट बोरिंग एनीवन। सब लोग को यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है, क्योंकि इसके आगे का बहुत सिंप्लीफाइड है। यहाँ तक की 2-3 चीजें थी जिनको समझना, जिनकी पैथोफिजियोलॉजी समझना जरूरी था, क्योंकि यही केसेस इसी स्टेज में हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। अभी जैसे सीजन चेंज हो रहा है तो हमारे पास इन्हीं स्टेज में बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं, एंड वी ऑलवेज मिसलीड और मिसडायग्नोज देम एज अ अम्ल पित्त, या हम उनको एज अ डिसीज का टैग लगा देते हैं, बट दोज आर नॉट इन द डिसीज स्टेज, दे आर इन द प्रसर अवस्था और दे आर इन बिटवीन समवेयर। फाइन। तो अभी हम आते हैं स्थान संशय, जहां से एक्चुअल डिसीज का अब रोल बनना या डिसीज का पैटर्न बनना शुरू हो चुका है। स्थान संशय में होता क्या है, दोष दुष्य की समूर्छना, दे आर स्टार्टिंग कंबाइनिंग विथ ईच अदर, जैसे कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाता है। इसमें 3 तरह की संप्रप्ति हमें दिखती है। एक है धातुआनुसारी। धातुआनुसारी यानी क्या कि यहाँ पर सिम्टम्स इतने इंटेंसली दिखते हैं, जैसे अभी फ्लू के सिम्टम्स आने शुरू हो चुके हैं। जैसे इस सीजन का जॉइंट पीरियड आता है, ऋतु संधि काल आता है, सडनली 103, 104 फीवर वाले पेशेंट अपने पास आने शुरू हो जाते हैं। ये जो जॉइंट पीरियड में आने वाले पेशेंट है, विच आर ऑलवेज शोइंग द इंटेंस एंड सीवियर सिम्टम्स, दोज आर द दोज पेशेंट आर इन अ स्टेज ऑफ स्थान संशय अवस्था। धातुअनुसारी संप्राप्ति में है वो। दूसरे है धातुआश्रयी, जहां पर दोष अभी एक्चुअली सेटल डाउन हो चुके हैं उस धातु में, बट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ कॉजिंग एनीथिंग, नॉट कैपेबल टू कॉज एनीथिंग ग्रॉस लेवल डैमेज, सो दे आर वर्किंग एट देयर माइन्यूट लेवल, और धातुओं के अग्नि को धीरे धीरे वो डीम करते जा रहे हैं। अब उन धातु अग्नि से जो पैदा होने वाले धातु है वो सामावस्था में है, और ये चीजें हमें लैब रिपोर्ट्स में पता चलती है। When we go for the lab reports, then कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है, ये बढ़ चुका है। बाहर से पेशेंट में कुछ सिम्टम नहीं दिख रहा है, बट लैब रिपोर्ट्स में बहुत सारी चीजें अलग अलग है। प्रोटीन दिख रहा है, यहाँ पर ये निकलते हुए दिख रहा है। दोज आर ऑल आर धातु अग्नि मांद्यजन्य कंडीशंस, सो वी कॉल देम एज धातुआश्रयी स्थान संशय संप्राप्ति अवस्था। थर्ड इज धातुगतत्व, मतलब अब दोष धातुओं में इतने सेटल डाउन हो चुके हैं दैट दे आर नाउ impacting the normal function of those dhatus and upadhatus, and furthermore if they proceed they will cause structural change in those ashayas. तो इन 3 स्टेज में स्थान संशय दिखाई देता है, and if we keenly observe the patients coming to us, we can easily can classify them in these 3 different stages, क्योंकि इन 3 स्टेजेस में ट्रीटमेंट का पैटर्न भी थोड़ा बदल जाता है। आफ्टर ऑल स्थान संशय इज नथिंग बट द भ्रमण, घूमने वाले दोषों का एक जगह पे लोकलाइज होना है, और ये सारे शरीर में भय घूमने वाले बिगड़े हुए दोषों की एक लोकलाइज एक्सप्रेशन स्टार्ट होने की स्टेज है। तो इसलिए ये शिशुदाचार्य पूरी लिस्ट बना देते हैं कि अगर गुदगत दोष गए तो क्या क्या बना देंगे, वृषणगत गए दोष तो कौन सी व्याधि पैदा करेंगे, उदरगत दोष गए तो गुल्म पैदा कर सकते हैं, विदर्दी का पैदा कर सकते हैं, अग्निमांद्य पैदा कर सकते हैं, विशिष्ट का पैदा कर सकते हैं, उदर पैदा कर सकते हैं, अतिसार पैदा कर सकते हैं। सो दैट व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट इंडिकेट कि एक ही स्थान में दोष अगर अलग अलग रूट से आते हैं, अलग अलग पैथोफिजियोलॉजी से आते हैं, देन दे कैन क्रिएट अ डिफरेंट डिसीजेस इन अ वन सिंगल लोकेशन ऑल्सो। उधर में ही
वायु आ रहा है तो अग्निमांद्य कर रहा है, वायु आ रहा है तो विसूचिका कर रहा है, वायु आ रहा है तो गुल्म कर रहा है। बस आने का तरीका, आने की पैथोफिजियोलॉजी, आने का रूट अलग अलग है। एक ही दोष एक ही अवयव में अलग अलग डिसीज क्यों पैदा कर सकता है? सो दैट्स द ब्यूटी। स्थान संचय होने की जो पैथोफिजियोलॉजी जो हमने अब तक समझी है, संचय, प्रकोप और प्रसार, इसमें जैसे ही रूट बदलता है डिसीज का बनने का पैटर्न बदल जाता है। अभी भी यहाँ पर व्याधि बल अभिव्यक्त नहीं हुआ है, सिम्टम्स आर माइन्यूट, दे आर नॉट कंटिन्यूअस। तो इसलिए ये हम इसको पूर्वरूप अवस्था कहते हैं कि जहां पर डिसीज के कुछ कुछ सिम्टम्स तो दिख रहे हैं बट डिसीज के पूरा पिक्चर जो है अब तक सामने आया नहीं है। और अगर हम यहाँ पर अपने 5 सेंसेस के द्वारा स्रोतों का एग्जामिनेशन प्रॉपरली करें, देन वी कैन स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज इज इन दिस स्टेज ओनली। वी कैन अरेस्ट द डिसीज प्रोग्रेशन एंड वी कैन रिवर्ट इट बैक ऑल्सो। चिकित्सा क्या करनी है? सार्वदेहिक दृष्टि के साथ साथ स्थानिक अभिव्यक्ति दोनों की चिकित्सा करनी है। दैट मीन्स वी हैव टू ट्रीट द होल बॉडी अलॉन्ग विद द लोकलाइज्ड दोष आल्सो। फॉर एग्जांपल, जैसे जीर्ण गिलाय वृत्ति, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, तो उस पेशेंट में हम लोकल ट्रीटमेंट के लिए गंडूस देंगे, कवल देंगे, अंदर विमलापन करेंगे, बट एट द सेम टाइम वी आर आल्सो गिविंग द मेडिसिन फॉर द ओवरऑल माउंस में द पोषण। अभ्यंग व्यायाम, वेगकाल जब होगा, पेनफुल स्वेलिंग जब भी होगी, तब व्याधि विपरीत चिकित्सा। एंड व्हेन वेगकाल इज नॉट देयर देन वी विल गो फॉर भ्रूण चिकित्सा, क्योंकि भ्रूण चिकित्सा धातुओं के बल को बढ़ाएगी। सर्वाधिक आम को पाचन करने के बाद धातुओं के बल को बढ़ाना, ये भी एक पार्ट हमें जोड़ना पड़ता है। तो पचन, शोधन और धातुओं के बल को बढ़ाना, ये तीनों चीजों को इस स्टेज में कंबाइन करना पड़ता है। फिफ्थ इज ए व्यक्ति, इसमें दोष बल इतना बढ़ जाता है, नाउ दे आर एबल टू express them as a and combine with the स्थान and express them as a व्याधि। अब यहाँ पे आतुर का बल कम होना शुरू हो चुका है और यहाँ पर दोष जिन जिन स्थानों में सेटल डाउन होते हैं वहां वहां की कर्म विकृति दिखनी शुरू हो जाती है। इसमें दो तरीके के डिसीज दिखते हैं, एज मेंशन बाय आचार्य सुश्रुता, शो फॉर बुध ग्रंथि विदरति विसर्प विचार मोर प्रोन टुवर्ड द सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड अदर आर ज्वरातिसार विच आर मोर प्रोन फॉर द और मोर कंसिडर अंडर काय चिकित्सा पार्ट। अब यहाँ पे रोग की व्यक्ति जो है वो दो टाइप्स की दिखती है। एक तो रोग लक्षण, मतलब जहां पर हम जिसको कहते हैं कि ज्वर कब कहे पेशेंट को, जब ज्वर के प्रत्यात्म लिंग दिखे तब। प्रत्यात्म लिंग क्या है ज्वर के? एनीबॉडी, कोई पोस्ट कर सकेगा चैट बॉक्स में, ज्वर के प्रत्यात्म लिंग क्या है? सब जाग रहे हैं? We are here, sir. Oh, that's good. शरीर इंद्रिय मनस्ताप, राइट। तो ज्वर के अगर ये प्रत्यात्म लिंग दिखते हैं तभी हम उसको कहेंगे कि यस, नाउ द दोषास हैव बीन गॉट शिफ्टेड टू द व्यक्ति अवस्था एज ए ज्वर। और अनुषंगिक लक्षण यानी उसी से एसोसिएटेड जो है वैचित्य हृदय ग्लानि, इस तरह के सिम्टम अगर दिखते हैं, देन वी विल कॉल दिस स्टेज एज ए व्यक्ति अवस्था। इसलिए हम जब याद करते हैं सेकेंड ईयर में व्याधि माधव निदान को, देन वी ऑलवेज सर्च फॉर द प्रत्यात्म लिंग। हर्ष का प्रत्यात्म लिंग क्या है, अतिसार का प्रत्यात्म लिंग क्या है, ज्वर का प्रत्यात्म लिंग क्या है, बिकॉज दीज आर द सिम्टम्स विच एक्चुअली डिनोट दैट यस नाउ दिस इज अ व्यक्ति स्टेज ऑफ द डिसीज। अगर ये सिम्टम नहीं है देन इट इज नॉट। अगेन अकॉर्डिंग टू हेतु भी कुछ सिम्टम दिखते हैं रोग व्यक्ति अवस्था में एज ए रिजल्ट ऑफ स्थान संशय। कुछ दोष किसी जगह पे सेटल डाउन होते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्थान कुछ सिम्टम एडअप होते हैं। जैसे ज्वर में देह इंद्रिय मनस्ताप के साथ साथ अगर वात सेटल डाउन होता है संधि में, तो संधिगत वेदना शुरू हो जाती है। ठीक है, वात सेटल डाउन होता है मोस्टली स्किन के लेवल पे, तो शीत उष्ण कामित्वता दिखनी शुरू हो जाती है। लाइक दैट जहाँ पे स्थान संशय हो रहा है वहां वहां के सिम्टम दिखना एज ए रिजल्ट ऑफ सर्वदेहिक दृष्टि। पूरे बॉडी में भी कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे हमने गौरव, आलस्य, अंगसाद ये सिम्टम देखे। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ मर्माघात, अगर किसी मर्म स्थान में दो सेटल डाउन होते हैं तो उस मर्म से रिलेटेड भी कुछ सिम्टम एड ऑन व्यक्ति अवस्था में हो जाते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि ग्रंथों में दिए हुए व्याधि के व्यक्त लक्षण के ही उतने ही लक्षण दिखे। अभी के जमाने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ के हेतुओं को सामने रखते हुए और लोगों के विहार आहार के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वी विल गेट सम मोर एडिशनल पिक्चर इन अ सेम डिसीज कंडीशन ऑल्सो। चिकित्सा क्या करनी है? तो यहाँ पर
फर्स्ट स्टेप इज व्याधि प्रत्येक चिकित्सा। अगर उपद्रव इंटेंस है तो पहले उपद्रव को हाथ लगाए, उनकी चिकित्सा करें। मर्म इन्वॉल्व है तो मर्म का संरक्षण भी करें, क्योंकि अगर आश्रय का नाश हुआ तो आश्रित का भी नाश हो जाता है। तो मर्म का संरक्षण करना जरूरी है। एंड लास्ट स्टेज इज भेद अवस्था। यहाँ पर अगर जैसे हमने व्यक्ति अवस्था में देखा कि शोफादि विकार एक है और दूसरे ज्वर अतिसार काय चिकित्सा वाले विकार है, तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत अगर शोफादि अवस्था रही तो उसमें वुंड उत्पन्न होना, व्रण होना, ये भेद अवस्था है। और ज्वर अतिसार जैसी व्याधियों का लॉन्ग टर्म बने रहना इज ऑल्सो कंसिडर एज इट शुड बी कंसिडर एज अ भेद अवस्था। कुछ वैद्यों का ऐसा कहना है कि नहीं, दोष दुष्यों के कॉम्बिनेशन के बाद जो वातज, पित्तज, कफज, ये व्याधियों के अलग अलग टाइप्स इलेबरेट होते हैं या एक्सप्रेस होते हैं, दो शुड बी कंसिडर अंडर भेद अवस्था। चिकित्सा क्या करनी है इसमें? अगेन फर्स्ट वी विल गो फॉर व्याधि प्रत्यनिक। उपद्रव बलवान हो तो उपद्रव की मर्म संरक्षण, और जहां पर दीर्घकालीन अनुबंध रहेगा व्याधि का, उस समय में दो वी हैव ट्रीटेड द पेशेंट अकॉर्डिंग टू डिसीज, स्टिल वी शुड नॉट फॉरगेट, जैसे हम उस केस में मैंने जो फर्स्ट टाइम केस प्रेजेंट की, उस केस में पेशेंट को जैसे सिम्टम से रिलीफ हुआ, पेशेंट छोड़ के चला गया, बट उसके दोषों का सेटल डाउन होना, दोषों की साम्यावस्था प्राप्त नहीं हुई थी। दैट्स व्हाई ही अगेन गॉट सम कंप्लेंट्स आफ्टर सम टाइम पीरियड, ऋतु संधि काल। ऐसा जहां जहां दोषों को बल मिलता गया, वहां उसके सिम्टम्स आते गए, क्योंकि शेष दोष जो बचे थे व्याधि प्रत्येक चिकित्सा के बाद, उनका शोधन करना और उनको साम्यावस्था में लाना, ये ट्रीटमेंट नहीं की गई थी। और अगर वैसे नहीं कहते हैं तो पेशेंट फिर अगेन ड्रॉप डाउन इन सम अनदर पैथोलॉजी, वो बचे हुए दोष दूसरी पैथोलॉजी शुरू कर देते हैं एंड पेशेंट ड्रॉप्स डाउन इन उधर का अवस्था। सो टेक होम मैसेज इतना ही है कि अगर भिषक खुद को कहलाना है तो ये 6 अवस्थाएं आपको पता ही होनी चाहिए। किसी भी व्याधि का लक्षण या किसी भी दोष का लक्षण किसी स्पेसिफिक अगर लोकेशन पे आपको दिखता है, तो वो वहां के स्थानिक दोष, धातु, आशय, स्रोत, इनके विकृति के स्वरूप में है और उस दोष के विकृति के स्वरूप में है। धातु स्रोतों का कर्म, धातु और स्रोतों का कर्मों का परीक्षण, धातु और स्रोतों के कर्मों का परीक्षण करते समय अगर हम थोड़ा कीनली ऑब्जर्व करें तो जो सिम्टम्स पेशेंट नहीं बता रहा है वो भी हमें एग्जामिनेशन के दौरान पता चल जाता है। लाइक समटाइम्स वी आर डूइंग द पेशेंट का हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट कहता है कि नहीं मुझे जॉइंट पेन है, यहाँ पर पेन है, वहाँ पे बताता है, बट एज सून एज वी टच द एब्डोमेन और प्रेस इट, पेशेंट गेट्स अ पेन, जबकि पेशेंट ने कहा भी नहीं था कि पेट में दर्द होता है करके। तो ये सिम्टम्स जो है ये हमें स्रोतों के एग्जामिनेशन के बाद पता चलते हैं। इसलिए मेक एन हैबिट टू एग्जामिन द पेशेंट थरली विथ एवरी स्रोतस। और ये सब लक्षण और व्याधि का बल समझना ये तभी पॉसिबल होता है जब हम पेशेंट को इन 6 अवस्था या क्रियाकालों में एनालाइज कर सकते हैं तभी। सो जितनी गहराई में रुग्ण अध्ययन करेंगे उतना ही क्रियाकाल की संप्राप्ति का भंग करना आसान होगा। नाउ कमिंग बैक टू दैट केस, पेशेंट जब मेरे पास आया था विद स्लर स्पीच एंड लॉस ऑफ फाइन मोटर कंट्रोल्स, उस समय पेशेंट में व्यक्ति अवस्था थी। ट्रीटमेंट की गई प्रोटोकॉल को देखते हुए व्याधि प्रत्यनिक, एट द सेम टाइम उद्भव स्थान से पेशेंट के दोष अल्पबल फॉर्म में गए, दोष संरचना टूटी, बट इसके बावजूद पेशेंट के दोष वैसे के वैसे ही थे, जो हर बार ऋतु संधि काल में जैसे ही उनको बल मिलता कुछ ना कुछ सिम्टम्स क्रिएट करते। अक्टूबर में शोधन करने के बावजूद भी पेशेंट को वापस मार्च अप्रैल में उत्क्लेश, छर्दी, ये सारे सिम्टम्स पैदा हुए। उसके बाद में अगेन अगले जनवरी में सब पैदा हुए, बिकॉज इस पेशेंट में 2 चीजें बिल्कुल नहीं छूट रही थी, दैट वाज अध्यशन, विषमासन एंड अजीर्णासन एंड कंसिस्टेंटली चिंतन। ये 4 फैक्टर्स जो थे, जो मेरे केस वाले पेशेंट में थे, जो वो छोड़ नहीं रहा था। दैट्स व्हाई एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज ऑन 16 June 2024, I advise him that he should strictly follow mindful eating and सद्वृत्त, क्योंकि जब तक ये 2 चीजें नहीं करेगा तब तक ये हेतु से निदान परिवर्जन नहीं हो पाएगा। एंड दैट्स हाउ वी ट्रीट डिफरेंट अवस्था एंड क्रिएट्स संप्राप्ति भंग। Once again, thank you for listening it quite and responding well in between. होप सो मैंने षटक्रिया काल को प्रॉपर टाइम में और प्रॉपर वे से समझा दिया हो।
अगर कुछ भी क्वेरी हो देन यू आर देन दोज आर वेलकम। आनंद सर। Thanks a lot. Thanks a lot, Shrikant, sir. Yeah. So, yeah, Dr. Shrikant, thank you again for an amazing session, for the insightful and enriching presentation today. Your expertise and knowledge has undoubtedly provided us with a deeper understanding on how Kshatriya Kal and its clinical application can be helpful to all the doctors present here. So before we conclude, I would like to open the floor for any questions. Please feel free to raise your hand or type your questions in the chat box, and Dr. Shrikant will address them. The Q&A shall be hosted and managed by Dr. Snehal. Dr. Snehal, please go ahead. Yes, it was indeed a very informative and very beautiful lecture, Dr. Shrikant. I am sure the students in the college where you are teaching are very lucky to have the teacher like you, and the Vaidyas in future we are getting will be much more polished to understand the Shadakriya Kal and treating the patients. If anyone has any doubts, please raise your hand or put it in the chat box so we can address your queries, and Dr. Shrikant will answer to your questions. Dr. Shrikant, your lecture was so amazing that there are no queries right now. Either they have learnt मुझे भी यही everything लग रहा or है। they don't know anything. आई थिंक सो, क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक एक सिंगल 1 आवर का नहीं है। इट विल नीड 2 to 3 वीक्स टू अंडरस्टैंड दिस वे, क्योंकि इसमें हर एक स्टेज अगर एलेबोरेट करने जाए तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 to 3 hours. Okay, let me put my query in terms of participants right now. As you explained, Chai Prakop Prasar, many times we see all us in single patient going on at a time. So is that true that all the avasthas goes on in a single patient? Like if the patient is coming off Amvat, who has almost Vyakti and Bhed avastha, but still some Sanchay, Prakop and Prasar kind of symptoms we are seeing due to some other reasons. So please put light on that. श्योर। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दो पेशेंट इज इन व्यक्ति अवस्था, स्टिल व्यक्ति अवस्था में वो इसलिए है क्योंकि बैक ऑफ द डिसीज संचय प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। संचय की प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती है, इसलिए दोषों को कंटिन्यूसली बल मिल रहा है। दैट्स व्हाई पेशेंट इज कंसिस्टेंटली इन अ व्यक्ति अवस्था। जैसे ही लाइक इट्स लाइक अ रसद, मतलब आप एक किले पे हो एंड यू आर फाइटिंग विद द ओपोनेंट्स, और अगर वो आपके किले पे आने वाली सारी रसद को, सारे फूड मटेरियल को, सारे बम गोला है या बारूद है, इनको अगर रोक देते देन यू आर नॉट एबल टू फाइट विद देम। सो निदान जब तक चालू है तब तक संचय प्रकोप प्रसर से ही दोष आगे बढ़ते बढ़ते दे आर कंटिन्यूसली नरिशिंग द व्यक्ति अवस्था दोषाज। व्यक्ति अवस्था में जो दोष इन्वॉल्व है, जो सेटल डाउन हो चुके हैं, उनका नरिशमेंट ये संचय वाले दोष ही करते रहते हैं। सो एज सुन एज दैट्स व्हाई वी हैव टू वर्क व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा इज व्हाट वी आर वर्किंग इन 2 ways. We are treating the धातुगत स्टेज also and we are treating the origin phase also. जैसे ज्वर में हमने ज्वर प्रतिनिक चिकित्सा कोई भी की, we are giving समझो महासुदर्शन काढ़ा दे दिया हमने, ठीक है। ज्वर प्रतिनिक है, व्याधि प्रतिनिक, इसलिए महासुदर्शन काढ़ा दे दिया। महासुदर्शन काढ़ा is what it is doing? It is doing what? It is doing 2 work. First, it is breaking down the धातु सामता। धातुओं में जो साम दोष बचे हैं उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, सो दैट दैट दोष समुच्चय विल ब्रेक डाउन देयर। एंड एट द सेम टाइम इट इज वर्किंग ऑन अग्नि आल्सो, जहाँ पे वो पाचक अग्नि बढ़ा रहा है, जठर अग्नि बढ़ा रहा है, ताकि वहां से बनने वाला नरिशमेंट जो है उस धातु में बैठे हुए दोषों का वो कट डाउन हो जाए। और इसलिए हम जब पेशेंट को एसोसिएटेड लंघन देते हैं तो पेशेंट गेट्स क्योर इजीली एंड फास्टर वे, मतलब 4 डोज में ही 3 डोज में ही 3 दिन में पेशेंट का फीवर फटाफट उतरना शुरू हो जाता है, तब होता है। बट पेशेंट कंसिस्टेंटली यहाँ पे खा रहा है और महासुदर्शन काढ़ा पी रहा है, देन इट टेक मोर टाइम, क्योंकि वहां पर कंपेयर टू औषधि आहार का बल ज्यादा है, हेतु का बल ज्यादा है, तो वहां पर औषधि की मात्रा कम पड़ जाती है और जो पेशेंट 3 या 4 दिन में नव या तरुण या साम अवस्था से बाहर निकल सकता है, उसको निकलने में समय लगता है।
तो अगर हम वैदिक प्रतिनिधि चिकित्सा में औषधि के साथ लंघन, ज्वर का फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज लंघन, तो लंघन हम ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों तरफ से कट डाउन कर देता है वैदिक की प्रोग्रेस को। संचय अवस्था से भी आगे बढ़ने वाली प्रोग्रेस कट डाउन करता है, और व्यक्ति अवस्था वाले भी, एंड द पेशेंट स्टार्ट टू गेट रिवर्ट बैक। तो यस, किसी भी व्यक्ति अवस्था में व्याधि की संचय अवस्था से दोषों का कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना चालू ही रहता है। Hope I have got your query cleared way. Yes, yes. Dr. So Smith, bottom yes. line is चिकित्सा के साथ आपको निदान परिवर्जन भी उतना ही अच्छे से करना है। Yes, You have it is to- compulsory. इसलिए अष्टांग हृदयकार वाग्भट जी भी कहते हैं कि अगर आपने सही हेतु पहचाना और सही हेतु का परिवर्जन किया, देन यू शुड गेट रिजल्ट विद इन 24 आवर्स। आशुकारी सद्य फलदायी है। निदान परिवर्जन अगर आप करते हो हेतु विपरीत चिकित्सा, या हेतु को ही निदान विपरीत करते हो, उसको साइड डाउन कर देते हो, तो आपको विद इन 24 आवर्स सिम्टम्स में रिलीफ दिखना कंपलसरी है ही, होना ही चाहिए। Yes, perfect. So Anand, I see no more questions, no more raised hands. So you can conclude the session, I guess. Okay, thank you, Dr. Snail. Thanks again, Dr. Shrikant. Thanks everybody for your active participation and questions today. We hope you all have found this session very valuable and informative. Once again, a big thanks to Dr. Shrikant Sanmukh for sharing his expertise with us today, and thanks to all the participants for joining us. We look forward to seeing you all in our next Gyanvardhini session, which is scheduled on 17th of October to be conducted by Dr. Sheetal Trivedi. The topic is on alopecia with case series. I have also copied a link for our Gyanvardhini WhatsApp community and also a YouTube channel, which you can check for the older webinars. So here we are going to now conclude this session. Thanks to everybody. Have a wonderful evening. Goodbye. Thank you. Good night, everybody. Thank you. Yeah, good night.